ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح بلند ہونے لگی۔ محمد پور گھوٹا اور موزہ بیلی میں سیلابی ریلا فلڈ بند سے ٹکرا گیا، سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب آ گئی۔ ملتان میں دریائے چناب میں پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ ہونے لگا۔ محمد پور گھوٹا، موزہ بیلی میں پانی فلڈ تک پہنچ گیا۔ سینکڑوں ایکڑ اراضی پر فصلیں اور باغات زیر آب آ گئے۔ اراضی زیر آب آنے پر دریائی علاقے کے رہائشیوں نے کشتیوں کی مدد سے سامان کی منتقلی شروع کر دی۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ بارشوں سے بھی شدید نقصان پہنچا۔ یہ ایریا تو کافی بڑا ہے، پانی بڑھ ہی رہا ہے، آج رات زیادہ ہوا ہے۔ اندر لوگ وغیرہ جو ہیں وہ نکل رہے ہیں باہر، کشتی کے ذریعے باہر آ رہے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق ہیڈ مرالہ پر 74,510 کیوسک جبکہ ہیڈ خانکی پر 94,317 کیوسک ہے۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ہیڈ قادر آباد پر 87,796 اور ہیڈ تریمو پر پانی کی آمد 77,877 کیوسک ہے، جبکہ آج رات پانی کی سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ تقریباً موزہ، محمد پور گھوٹا، موزہ بیلی اور جوین شریف یہ سارے علاقے جڑا ہے اس وقت زیر آب ہیں، ہر کوئی اپنی مدد آپ دے تحت باہر نکلتا پہ یا جی میں بھی۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق دریائے سندھ میں توسا کے مقام پر 2,83,000 کیوسک پانی کی آمد ہے، جبکہ دریائے راوی میں ہیڈ سے دنائی کے مقام پر پانی کی آمد 20,611 کیوسک ہے۔ کیمرامین عظیم شہزاد کے ساتھ یاسر مجید، ملتان۔ ڈیرہ غازی خان میں بارش شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ شاہ سکندر روڈ پر گزشتہ دنوں ہونے والی بارش کا پانی جمع ہو گیا، جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا ڈیرہ غازی خان میں گزشتہ دنوں ہونے والی بارش شہریوں کے لیے زحمت بن گئی۔ شاہ سکندر روڈ پر جمع بارش کے پانی نے شہریوں کی مشکلات کو بڑھا دیا۔ شہریوں کو آمد و رفت میں بھی شدید دشواری کا سامنا ہے۔ تقریباً ہفتہ تھی گئے پانی کھڑے، کوئی انتظامیہ کوئی سارے کنے کہیں نہیں، آپ دے دے پہ پانی دا حال مشکلات دا سامنا ہے۔ بالکل راہگیروں کا کہنا تھا کہ سڑک پر بارش کا پانی گزشتہ کئی روز سے جمع ہے اور میٹروپولیٹن اہلکار پانی کی نکاسی میں بری طرح ناکام ہیں۔ سڑک پر جمع پانی کے باعث لوگوں کے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ بارشیں دا پانی بہو ہے، عوام ٹپدی ہے، گٹریں ٹھیپ ہوندی ہے، گٹر دا پانی میکس ہے بارش دے نال، کاروبار متاثر ہیں حد کے زیادہ، کوئی حال کہ نہیں۔ شہریوں نے میٹروپولیٹن انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ٹیمیں بھجوا کر شاہ سکندر روڈ سے پانی فوری نکلوایا جائے اور انہیں مشکلات سے نجات دلوائی جائے۔ کیمرامین وقار الحسن کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان۔ دوسری جانب مونسون کی بارشوں نے ملتان انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ کچہری روڈ پر بڑا سیلاب پڑنے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ حالیہ بارشوں سے انتظامیہ کی کارکردگی کا پول کھل گیا۔ ملتان کی سڑکوں پر کراؤن فیلئر کے واقعات معمول بن گئے۔ کچہری روڈ پر بڑا گڑھا پڑنے سے ٹریفک روانی متاثر، جبکہ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ روڈ پر گڑھوں کے باعث ٹریفک حادثات کا خطرہ ہے۔ کچہری روڈ جو ملتان کا مصروف ترین روڈ ہے، آئے دن جہاد بھی کچھ تھوڑی سی بھی بارش ہو تو یہ روڈ پورا پانی سے ہے نا سیلاب کا منظر پیش کرتا ہے۔ ہمارے ان جو محکموں والوں سے گزارش ہے کہ اس کا ہے نا پراپر حل کریں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ رات کے وقت لائٹ کم ہونے کی وجہ سے سنگین حادثات رونما ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں آپ کے سامنے اتنا بڑا گڑھا ہے، اس میں کوئی بھی خوفناک حادثہ ہو سکتا ہے، موٹر سائیکل والا یا کچھ۔ اندر گلی میں جا کے دیکھیں تو پورا پانی پانی کھڑا ہوا ہے، سمجھے گزرنے کا راستہ نہیں ہے، تو لہذا ان چیزوں کا کوئی حل کرنا چاہیے۔ واسا کا محکمہ جو بھی ہے وہ آ کے دیکھتا ہی نہیں ہے کوئی بھی، سمجھیے انہیں چاہیے کہ آگے دیکھیں۔ شہری حلقوں نے واسا حکام سے فوری نوٹس لے کر سڑک کا مرمتی کام کرانے کا مطالبہ کیا ہے۔ سڑک کے درمیان یہ گڑھے سنگین حادثات کا سبب بن سکتے ہیں، انتظامیہ کو چاہیے کہ فوری ایکشن لیں۔ کیمرامین ہارون احمد کے ساتھ محمد فراز، روہی، ملتان۔ میاوالی میں ایک گھنٹے کی تیز بارش نے جل تھل ایک کر دیا، سڑکوں پر بارش کا پانی جمع ہو گیا۔ دوسری طرف کاشتکار اس بارش سے پریشان ہیں، ان کا کہنا ہے ان دنوں بارش فصلوں کے لیے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ میاوالی میں بادل برسے اور خوب کھل کر برسے، شہر میں مسلسل 1 گھنٹہ تک بارش ہوتی رہی۔ شہریوں کا بارش پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنا تھا کہ گرمی کا زور ٹوٹ چکا، موسم خوبصورت ہو گیا ہے۔ الحمدللہ موسم بہت اچھا ہو گیا، میاوالی میں بڑی جم کر بارش ہو رہی ہے اور ساون کی بارشوں کا سلسلے کا دوسرے سپیل کا آغاز ہو گیا۔ ابھی الحمدللہ بہت پیارا موسم ہو گیا، بہت اچھی بارش ہو رہی ہے۔ دوسری طرف کچھ شہریوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ ایک تو ان دنوں بارش کپاس اور مونگ کی فصل کے لیے نقصان دہ ہے، دوسرا سیلابی ریلوں نے نشیبی علاقوں میں تباہی مچائی ہوئی ہے۔ دعا گو ہیں کہ ابر رحمت زحمت نہ بنے۔ میاوالی میں موسم بہت پیارا ہو گیا ہے، لیکن یہ فصلوں کے لیے نقصان دہ ہے کیونکہ پچھلے ہفتے سے لگاتار بارشیں ہو رہی ہیں۔ مونگی کی فصل کے لیے یہ نقصان دہ ہے۔ اللہ کرے کہ آگے موسم ٹھیک ہو جائے، فصلیں تباہ برباد ہو رہی ہیں۔
उधर मौसम की खबर देने वालों ने पेश गोई की है कि आइंदा 3 रोज तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियां वाली। अहमदपुर शर्किया में सीवरेज मेगा प्लान शुरू हुए 2 साल का अरसा बीत गया, मगर काम अभी तक नामुकम्मल है। तामीराती काम में ताखीर के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना है। अहमदपुर शर्किया में 20 करोड़ की लागत से सीवरेज मेगा प्लान ताहाल ताखीर का शिकार। पुराना डाखाना रोड पर फेज 2 मंसूबे का काम अभी तक जारी है, जो सुस्त रवि के बायस शहरियों के लिए दर्द-ए-सर बन गया है। शहर की हर गली, हर मोहल्ला गंदे पानी में डूब चुका है। तामीराती काम में ताखीर के बायस शहरियों को, दुकानदारों को, राहगीरों को मुश्किलात का सामना है। सारी दुकान तकरीबन 20,000 रुपए का नुकसान थी, माल सारा गिला थी गए, खराब थी गए। अस कट दो धोप दे सुकेंदे पे और बाकायदा दुकान के सामने बाहर भी नजर आसे अगर कैमरामैन उन्हें दिखावे चाहता। शहरियों का कहना है कि ठेकेदार की गफलत के बायस कारोबार तबाह हो गया है। बड़ी तकलीफ है, खड्डे च मोटरसाइकिल में बंदा ही वन पे पानी च बड़ी मुश्किल में कड्डे से काफी सारे जेड़े ना तकलीफ है। 2 बंदे गटरे ढाने आन ढकने कहनी ना दे ते बड़े परेशान है। लग गया बहुत सारी परेशानी है, लोग नमाज ही पढ़ने वास्ते नहीं बन सकते, बहुत सारी परेशानी है बेअंतहा। 2 साल पहले शुरू किया गया काम ठप हो चुका है। सड़कों पर पड़े गड्ढे शहरियों को मौत की दावत देने लगे। शहरियों ने आला हुकाम से सीवरेज का काम जल्द मुकम्मल कराने का मुतालबा किया है। अहमदपुर शर्किया के सीवरेज मेगा प्लान 2 साल के अरसे में पूरे नहीं हो सके। अगर इस प्लान को जल्द मुकम्मल कर दिया जाए तो शहरियों की मुश्किलात में कमी वाक़या हो सकती है। कैमरा टीम के हमरा इमरान अकबर, रोही, अहमदपुर शर्किया। दुनियापुर म्यूनिसिपल कमेटी की नहली या गफलत। बारिश हुए 3 रोज हो गए, लेकिन 2 कोटा चौक में 2 रोइया सड़क से सीवरेज और बारिश का पानी नहीं निकाला जा सका, जिसकी वजह से शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। दुनियापुर में दुकोटा चौक मेन रोड पर अरसा दराज से सीवरेज सिस्टम नकारा। गंदा पानी सड़क पर जमा रहता है और अगर बारिश हो जाए तो कई फुट पानी जमा होना मामूल है। शहर का दाखिली गेट होने की वजह से राहगीरों को आमद रफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सुबह के वक्त स्कूल और कॉलेज के बच्चे सीवरेज ज्यादा पानी से गुजरते हैं। अब कपड़े भी गीले, बैग भी, और मोटरसाइकिल का कभी कभी प्लग में पानी डल जाता है, फिर वो स्टार्ट नहीं होता। अगर वो बंद भी हो जाए तो फिर दरमियान में खड़ना मुश्किल हो जाता है। मेन रोड है, सारे आम है, आम इस्तेमाल का रास्ता है, पानी इतने जमा रहता है। इंतजामिया की गफलत का शिकार है, कभी इंतजामिया ने तवज्जो नहीं की हैगी। करोड़ों रुपए का रोड बने, वो भी थले बैठ रहे पानी की वजह तो, गेट भी खराब हो रहा है ते मुसाफिर आने जाने वाले बस वैगन रिक्शा वाले सारे परेशान होते हैं। दुकानदारों का कहना था कि 3 दिन से बारिश और सीवरेज का पानी खड़ा है। तौफान ज्यादा सीवरेज और बारिश के पानी ने इनके कारोबार तबाह कर दिए। पानी खड़ा है रोड पे, आज 3 दिन हो गए बारिश खत्म हुए। ये मेरी सामने दुकान है ऑटो इलेक्ट्रीशियन की, तो बदबू इतनी ज्यादा है कि बुरा हाल हुआ पड़ा है। तो ये हमारी इंतजामिया इतनी अच्छी है कि करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है हमारा। ये कारोबार का भी हो रहा है, रोड का भी नुकसान हो रहा है, तो अभी तक ये पानी नहीं उठा पा रहे। दुकानदारों और आम शहरियों का कहना था कि मुतअद्दिद बार म्यूनसिपल इंतजामिया को दरख्वास्तें दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उन्होंने आला हकाम से निकास आबी के फौरी इंतजाम करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन रौफ फरमान अली के साथ मोहम्मद याकूब ताहिर, रोही, दुनियापुर। चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान और दीगर अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन तंजीम ख्वाजा सुलेमान का कहना था कि बिजली की कीमत में आए रोज इजाफे और दीगर टैक्सेस पर ताजिर बरादरी सरापा एहतजाज है। ख्वाजा सुलेमान ने हफ्ते के रोज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दे दी। मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान बिजली की कीमत में आए रोज इजाफे और दीगर टैक्सेस पर बरहम, हुकूमत को हड़ताल की धमकी दे डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ख्वाजा सुलेमान और दीगर ओहदेदारान ने ताजर बिरादरी के हकूक के लिए आवाज भी बुलंद की। पिछले 3 माह में 7 रुपए 90 पैसे एक दफा बढ़े, 7 रुपए 90 पैसे फिर बढ़े, और आज फिर आया हुआ है, कल फिर ऐलान हुआ है कि जी 7 रुपए 90 पैसे और बढ़ा रहे हैं, जबकि वो इस माह 3.5 रुपए हैं, वो अगले माह 4 रुपए हैं, तो बेसिक तो वो 8 रुपए ही बढ़ गए ना। ख्वाजा सुलेमान का कहना था कि मौजूदा मुल्की हालात में कोई कारोबार नहीं है। गुज़श्ता कुछ माह से दुकान बंद करने वाला ही अच्छा है। इस मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। गुर्बत के बायस चोरी डकैती की वारदातें बढ़ रही हैं। 80% ताजर मुल्क छोड़कर जा चुका है। जो भी आ रहा है वो छोटे गरीब आवाम पर या इनके ऊपर, ये छोटे ताजरों पर जुल्म ढाए जा रहे हैं, तो हम बिल्कुल इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इंशाअल्लाह हफ्ते वाले दिन एहतजाज करेंगे और उसके बावजूद अगर हुकूमत ने ना मानी तो हम गैर मुअय्यन मुद्दत के लिए हड़ताल कर देंगे।
चेयरमैन मरकजी तंजीम ताजरान का कहना था कि कोई ताजर आज के दौर में अपने बच्चों का पेट भी नहीं पाल सकता। हुकूमत बिजली की कीमतें हर रोज बढ़ा रही है। वो हफ्ते के रोज एहतजाज करने जा रहे हैं। अगर हुकूमत ने उनके मुतालबात ना माने तो गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल करेंगे और बिजली के बिल भी अदा नहीं करेंगे। कैमरामैन फहीम के साथ मोहम्मद इब्राहिम खान, मुल्तान। मुल्तान में ताजिर बिजली के बिलों पर ज़ायद टैक्स के खिलाफ सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजिरान कब बाजार ने मस्जिद वली मोहम्मद के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुल्तान में चौक बाजार काले मंडी में ताजिर सरापा एहतजाज। अंजुमन ताजरान कुब बाजार ने मस्जिद वली मोहम्मद के बाहर बिजली के बिलों पर ज़ायद टैक्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। एहतजाजी मुजाहिरे की क़ियादत शाहिद महमूद अंसारी, हाजी अब्दुल हमीद, ज़हीरुद्दीन कुरैशी, गुलाम मुस्तफ़ा कुरैशी, नवीद कुरैशी और दीगर ताजरान ने की। मुजाहिरे में वापडा के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। कारोबार इंतहाई तबाही की तरफ है, हमारी मईशत तबाह होती चली जा रही है, लेकिन IMF ने, वजारत खजाना ने, FBR ने और मैपको ने मिलकर अवाम के खिलाफ, खुसूसन छोटे ताजरों के खिलाफ साजिश की है और हमें जिंदा दरगोर करने का प्लान बना लिया गया है। शाहिद महमूद अंसारी का कहना था कि बिजली के बिलों पर जालिमाना टैक्स छोटे ताजरों को जिंदा दरगोर करने के मुतरादिफ हैं। हुक्मरान एक सोची समझी साजिश के तहत ताजरों का मौशी कत्ले आम करने के प्लान पर अमल पैरा हैं। अगर ये जालिमाना टैक्स खत्म न किया गया तो फिर मुल्क गिर शटर डाउन होगा। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, इसने तमाम ताजिर बिरादरी का सत्यानाश कर दिया है। जब तमाम लोगों को पीस के रख दिया, कभी तेल की मद में, कभी महंगाई की मद में, कभी किरायों की मद में। आज आखिरी बचा था बिजली के बिलों में, वो भी 3-3 हज़ार छोटे दुकानदारों के साथ बिल लगाकर ज्यादती की गई है। ताजिर बिरादरी का कहना था कि महंगाई ने जीना हराम कर दिया है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, कारोबारी हालात पहले ही ठीक नहीं, लेकिन हुकूमत फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ज्यादा बिल वसूल कर रही है। ताजिर बिरादरी ने हुकूमत से अपील की है कि इनके हाल पर रहम किया जाए। कैमरामैन हारून के साथ मोहम्मद फराज रमजान, रोही, मुल्तान। मैपको हुकाम की नहली या गफलत। जामपुर में शेरू अड्डा का ट्रांसफार्मर बारिश के बाद 3 रोज पहले जल गया था। बिजली बंदिश के बाद दुकानदार और इलाका मकीन परेशान होकर रह गए। जामपुर में शेरू अड्डा के मकीन मैपको के खिलाफ सरापा एहतजाज। शेरू अड्डे का बिजली का ट्रांसफार्मर बारिश के बायस जल गया था, जिसे 3 रोज गुजरने के बावजूद मैपको हुकाम ने तब्दील नहीं किया। इलाका मकीनों का कहना था कि आला हुकाम को शिकायत कर चुके हैं। मैपको जामपुर के दफ्तर भी गए मगर कोई सुनवाई नहीं हुई। 3 रोज से घरों में पानी नहीं, बच्चे गर्मी से भी निढाल हैं। 3 दिन से यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है। बच्चे छोटे घरों में बिजली के बगैर गर्मी में मुतासिर हैं। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे लोगों का जरिया मुआश बंद हुआ है और आवाम को कोई फिक्र नहीं है। हर वक्त कॉल की जा रही है और वो कह रहे हैं कि हम 15 मिनट में 20 मिनट में आ रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया। एक और नौजवान का कहना था कि अफसरान को क्या मालूम कि अवाम किस मुश्किल में है। बच्चे बूढ़े गर्मी से मर रहे हैं, कारोबार भी बंद है, मगर मैपको हुकाम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। घरों में पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार हो गए हैं इस बिजली की ना होने की वजह से। हम इसको SDO साहब से गुजारिश करते हैं कि बराए मेहरबानी आज ये हमारा काम जो है ना ट्रांसफार्मर चेंज किया। इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि 100 kV का ट्रांसफार्मर लोड बर्दाश्त नहीं कर सकता, यहाँ 200 kV का ट्रांसफार्मर लगाया जाए। आज तीसरा दिन हो गया वापडा की नाअहली आपके सामने अहले मोहल्ला बाहर निकल आए हैं। हमारे घरों में पानी नहीं है, छोटे छोटे बच्चे गर्मी से तड़प रहे हैं। इस अजियत का हमें जवाब दिया जाए। ये वापडा नाअहल वापडा का SDO जो बैठा हुआ है उसने अभी तक कोई इकदाम नहीं किया। उधर मैपको हुकाम का मौक़िफ़ है कि बारिश में इमरजेंसी बुनियाद पर काम करके बिजली फराम की जा रही है, मगर शेरू अड्डा पर सूरत हाल इसके बरअक्स दिखाई देती है। 3 रोज से अजियत का शिकार शेरू अड्डे के मकीन एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि मेहरबानी करके उनके ट्रांसफार्मर को तब्दील किया जाए ताकि यहाँ की बिजली बहाल हो सके। शदीद गर्मी में उनके बच्चे जो हैं काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। साथ ही कैमरामैन के साथ जावेद इकबाल, रोही, जामपुर। पंजाब के ट्रांसपोर्टर्स लागू टैक्सेस और पेट्रोलियम की बढ़ती कीमतों के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुतालबात पूरे न होने पर 2 अगस्त को मुल्क भर में पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। पंजाब के बड़े ट्रांसपोर्टर्स हुकूमती इक़दामात के खिलाफ यकजा। हुकूमत के ज़ायद टैक्सेस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम करने का मुतालबा। ट्रांसपोर्टर्स ने 2 अगस्त को मुल्क गिर पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया। फाइलर पर 400 रुपये सालाना कर दिया है, 4000 कर दिया है और नॉन फेयर 8000 रुपये, जो कि ट्रांसपोर्ट मौशी कत्ल है। हम हुकूमत को मांग करते हैं कि तो फौरी तौर पर नोटिफिकेशन वापस लिया जाए और तेल की जो बढ़ती कीमतें इनको फौरन वापस किया जाए। अगर ये नहीं करेंगे तो हम मजबूरन 2 तारीख को अपने हड़ताल पर जाएंगे
और मुकम्मल मुल्क का पहिया जाम हड़ताल करेंगे। ट्रांसपोर्टर्स का कहना था कि इन्होंने हर मुश्किल फैसले में हुकूमत का साथ दिया, लेकिन अब इनकी सकत खत्म हो चुकी है। ट्रांसपोर्टर्स मुल्क में रीढ़ की हड्डी की मानिंद हैं। इनका माशी कत्ल बंद किया जाए और ट्रांसपोर्ट से जुड़े जायद टैक्सेस और कीमतें कम की जाएं। सबसे पहला मुतालबा हमारा ये है कि टोकन टैक्स में इनकम टैक्स की बहुत ज़्यादा 1 लाखों में बढ़ा दिया है। 300 रुपये सीट से 8,000 रुपये सीट तक कर दिया गया है, तो ये एक नाकाबिल बर्दाश्त है। इसी तरह हमारे कोई और छोटे छोटे मुतालबात हैं जिसमें ट्रैफिक पुलिस के मसले हैं, मोटरवे की पुलिस के हैं, जिसमें रूट के मसले हैं। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमती फैसलों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा भी किया और अपने मुतालबात बयान करते हुए 2 अगस्त से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का भी ऐलान किया। ट्रांसपोर्टर्स ने हुकूमत से मुतालबा किया कि पेट्रोलियम मसनूआत की जायद कीमतों, इनकम टैक्स, टूल टैक्स, ट्रैफिक के भारी जुर्मानों और दीगर मसाइल से इनकी जान छुड़वाई जाए। कैमरामैन अजीम सागर के साथ शकील सुल्तान, रोही मुल्तान। परवेज इलाही ने वजीर आला पंजाब की कुर्सी संभाल ली। मुल्तान में तहरीक इंसाफ के कारकुनान का जश्न। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीटीआई वर्कर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डालकर खुशी का इजहार किया। परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन गए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद पीटीआई वर्कर्स ने खूब जश्न मनाया। इस सिलसिले में जिलाई सेक्रेटेरिएट में तकरीब सजाई गई, जिसमें पार्टी कारकुनान ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और मिठाई भी तकसीम की। जिलाई सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वडाइच का कहना था कि अवाम की ताकत से हुकूमत में आए हैं। अदलिया ने इंसाफ का बोलबाला किया। बिला मुबालगा पार्टी लाइन से हट के पूरा पाकिस्तान इस वक्त जश्न मना रहा है। उसकी वजह यह है कि लोग हमेशा इंसाफ के साथ जाते हैं, हक के साथ जाते हैं। कारकुनान का कहना था कि पंजाब हुकूमत बनने पर पंजाब के अवाम को मुबारकबाद देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हक और सच पर मबनी फैसला किया। हक और बातिल की जंग थी और इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व, जिस वजह से देखें अल्लाह ने साथ दिया है, हम इमरान खान का साथ दिया है और सच्चे बंदे का साथ दिया है, तो अब जरूरत भी ऐसे सच्चे हुक्मरान की है। तकरीब में कप्तान के खिलाड़ियों ने हुकूमत के हक में खूब नारेबाजी भी की। कैमरामैन एडी नवाज के साथ जुनेद अनवर, मुल्तान। रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में डीपीओ अख्तर फारूक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जिला में तेजी से कच्चा ऑपरेशन किया जा रहा है। जराइम की रोकथाम के लिए पुलिस तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। डीपीओ रहीम यार खान अख्तर फारूक कहते हैं कि पुलिस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कच्चा ऑपरेशन है। गुज़िश्ता 3 हफ्तों में अगवा का एक भी केस सामने नहीं आया। चोरी और स्ट्रीट क्राइम को कम करने के लिए पुलिस मुतहर्रिक होकर काम कर रही है। कच्चे का एक बड़ा सीरियस इशू है और मैं ये नहीं कहता कि उसको हमने 100% काबू कर लिया है, लेकिन मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 3 हफ्तों में मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमारी एक भी किडनैपिंग की वारदात नहीं हुई। मैं रिपीट करता हूँ, 3 हफ्तों में एक भी किडनैपिंग की वारदात नहीं हुई। नंबर 1 तो 42 के करीब हमने पिकेट स्टैब्लिश किए हैं। हमारे साथ एलीट की गाड़ियाँ हमें एडिशनल मिली हैं 28 के करीब। उन सारी गाड़ियों को हमने उस तरफ डाइवर्ट किया है। उसके साथ साथ हमें APCs हम मज़ीद 3 ले रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी जल्दी हमारे पूल में आ जाएंगी। हमारी 4 APCs हैं जो इसकी वजह से हमारा अल्हम्दुलिल्लाह जो किडनैपिंग पर रैंसम है और दूसरा क्राइम है वो बहुत कम हुआ है। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीपीओ अख्तर फारूक का कहना था कि शहरियों को सस्ता, फौरी और मेरिट पर इंसाफ देने के लिए पुलिस मुतरजीही बुनियादों पर काम कर रही है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, हाईकोर्ट बार मुल्तान के अहदेदारान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वकला के कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश का इजहार किया गया। कहा अगर इन वाक़यात का सिलसिला बंद न हुआ तो आइंदा सख्त लाएअमल अपनाएंगे। वकला के कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात। हाईकोर्ट बार मुल्तान की जानिब से सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल अशरफ राही के कत्ल और मुल्तान में एडवोकेट सैयद मुदस्सर बुखारी पर कातिलाना हमला के खिलाफ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। सदर हाईकोर्ट बार मियां आदिल मुश्ताक का कहना था कि इस्लामाबाद में पूरे पाकिस्तान की नुमाइंदा बार्स की मीटिंग हुई, जिसमें वकला प्रोटेक्शन एक्ट के नफाज के लिए मिलकर लेटर लिखे गए। हुकूमत पंजाब से मुतालबा है कि वकला तहफ़्फ़ुज़ का बिल फौरी मंजूर किया जाए। वकला प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसको फिलफौर असेंबली से पास करवा के नाफिज अमल किया जाए, ताकि हर वकील की जानो माल जो है उसको यकीनी बनाया जाए, मगर अब तक उस पर अमल नहीं हुआ। बार अहदेदारान का कहना था कि वकला के कत्ल और तशद्दुद के वाक़यात ना रुके तो अपना अगला लाए अमल अपनाएंगे। उन्होंने एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब से मुतालबा किया कि एडवोकेट मुदस्सर बुखारी पर हमला करने वाले मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए। ऐसे तमाम जो वाक़यात हुए हैं और स्पेसिफिकली ये 2 हाल ही में एक दिन में जो वक़ुआत हुए हैं, उनकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करती है और अरबाब इख्तियार से मुतालबा करती है कि फिलफौर
जनाब सेक्रेटरी पंजाब बार कौंसिल अशरफ राई साहब के कातलों को भी गिरफ्तार किया जाए। मेंबर पंजाब बार कौंसिल राना तुफैल नून ने कहा कि अशरफ राई इंतहाई शरीफ इंसान थे। 40 साल से वो खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। अशरफ राई को टारगेट किलिंग का निशाना बना दिया गया। पंजाब भर में जहां वकला पर जुल्म हुआ, उन्होंने हमेशा मजम्मत की। ये हमारा जो वकला का प्रोटेक्शन एक्ट जो हमने भेजा है, जैसे मियां साहब फरमा रहे थे, पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो प्रोग्राम अरेंज किया था उसमें तमाम हाई कोर्ट बार, तो मियां साहब ने वहाँ मौसर अंदाज में हमारी नुमाइंदगी की। इस मौका पर बार के दीगर अहदेदारान और वकला भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मरहूम अशरफ राई के साले सवाब के लिए दुआ भी कराई गई। कैमरामैन सफीर के साथ मार इमरान नवाज, मुल्तान।